friends, this is Mehak Sharma. I'm here to teach you the courses provided by Punjabi University Patiala for BA BSc Mathematics. This lecture is a demo for the topic Successive Differentiation, the first chapter of Calculus, Subject 1 for BA BSc Semester 1. The online classes are starting from 4th of August on Zoom. For joining, please contact this number. Now, in order to move forward to our today's topic, we first have to revise some formulae. Now, these formulae, we have studied them already in plus 1-2, but आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इनको याद करें. अच्छे से याद हो तो ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो फॉर्मूले देख लेते हैं. Differentiation of x with respect to dx is equals to 1. Differentiation of x raised to power n with respect to dx is equals to n into x raised to power n minus 1. d of dx raised to power x with respect to dx is equals to x raised to power x into 1 plus log of x. Differentiation of sine of x with respect to dx is equals to cos of x. Differentiation of cos of x with respect to dx is equals to minus sine of x. d by dx of secant x is equals to secant x into tan of x. d by dx of tan x is equals to secant square x. d by dx of cosecant x is equals to minus cosecant x into cot of x. d by dx of cot of x is equals to minus cosecant square x. d of dx of mod of x is equals to x divided by mod of x. d by dx of log of x is equals to 1 by x. d by dx of e raised to power x is equals to e raised to power x. Now here e is exponential function. Next, d by dx of sine inverse of x is equals to 1 divided by root 1 minus x square for all mod of x is less than 1. d by dx of cosecant inverse of x is equals to minus 1 divided by root 1 minus x square. d by dx of tan inverse of x is equals to 1 by 1 plus x square. d by dx of cot inverse of x is equals to minus 1 by 1 plus x square. d by dx of secant inverse of x is equals to 1 divided by mod of x into root x square minus 1. d by dx of cosecant inverse of x is equals to minus 1 divided by mod of x into root x square minus 1. Now here there is the definition of left hand derivative and right hand derivative. So left hand derivative of f of c is equals to limit h tends to 0 f of c minus h minus f of c divided by minus h. Right hand derivative r f dash of c is equals to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. Now the hyperbolic functions. जनरली जो फंक्शंस होते हैं जैसे cos of x, sin of x, tan of x, ये सर्कल पे डिफाइंड होते हैं. इनकी जो जनरल वैल्यूज होती है हमारे पास cos of 0 1, sin of 0 0, ये सारी किन पे होती है जब हम सर्कल पे डिफाइन करते हैं इन फंक्शंस को. बट हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? जब हम इन्हीं फंक्शंस को हम एक हाइपरबोला के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं तो उनको हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं और उनको ऐसे लिखते हैं. दे आर रिटन लाइक cos h of x, sin h of x and tan h of x. तो जो ये वाले फंक्शंस होते हैं अगर आपको ये कहीं पे भी दिखे तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं और इनकी डेरिवेटिव कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है सर्कुलर फंक्शन से, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है और ये हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे आते हैं हमारे क्वेश्चंस में. डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये भी फॉर्मूले है, ये आपको याद रखने हैं. d by dx of sine of x is equals to cos of x. तो सेम ही है. d by dx of cos of x is equals to sine of x. वहां पे माइनस होता है, यहाँ पे sin of x, सिंपल पॉजिटिव. d by dx of tan of x is equals to secant square x. d by dx of secant x is equals to minus secant x into tan of x.
d by dx of cot of x is equals to minus cosecant square x. d by dx of cosecant x is equals to minus cosecant x into cot of x. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर, which is successive differentiation. तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको सबसे पहले एक एग्जांपल से ही समझाऊंगी और यही बेस्ट वे है समझने का कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होती क्या है और इसको कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन ऑफ x which is y equals to x raised to power 6 plus 3 into x raised to power 5 plus 2 into x raised to power 4 plus x raised to power 3 plus x square minus x minus 1. तो ये हमारे पास फंक्शन है. अगर हम इसकी इसका सिंपल डेरिवेटिव ले तो क्या आएगा, dy by dx इक्वल्स टू कैपिटल D ऑफ y इक्वल्स टू y1. अब ये तीनों चीजें क्या है, ये सेम चीज है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. बस ये क्या है कि इसको डेरिवेटिव लिखने का अलग अलग स्टाइल है. dy by dx और कैपिटल D ऑफ y और y1 तीनों एक ही चीज है और इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 6 into x raised to power 5 plus 15 into x raised to power 4 plus 8 into x raised to power cube plus 3x square plus 2x minus 1. ये तो पता है ना कि ये x raised to power 6 ही 6x raised to power 5 बना है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव करते हैं ऑफ x raised to power n तो हमारे पास आता है n into x raised to power n minus 1. So x raised to power 6 becomes 6 into x raised to power 6 minus 1, that is x raised to power 5. तो सिमिलरली जब हम dy by dx को फिर से डिराइव करेंगे, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास आता है इसका सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव को हम लिखते हैं d2y by dx2 is equals to कैपिटल D स्क्वायर y is equals to y2. अब हम इन तीनों में से तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, हम तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, 6 into 5 into x raised to power 4 plus 15 into 4 into x raised to power 3 plus 8 into 3 into x raised to power 2, 3 into 2 into x plus 2 into 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा. तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या बना, 30x raised to power 4 plus 60x cube plus 24x square plus 6x plus 2. अब हम इसके सेकंड डेरिवेटिव को जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा. सिंपल डिफरेंशिएट करने हमने पहले y को फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया. अब हम थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालेंगे. तो d क्यूब y by dx क्यूब क्या आएगा, 120x क्यूब प्लस 180x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 6. सिमिलरली इसका फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, 360x स्क्वायर प्लस 360x प्लस 48. फिफ्थ डेरिवेटिव 720x प्लस 360 और सिक्स्थ डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 720. अब हम इसका सेवेंथ डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे तो x है ही नहीं क्योंकि हम dy by dx करते हैं, तो x ही नहीं है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. सो y7 इज इक्वल्स टू 0. तो ये आपकी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें कुछ भी नहीं है. अगर हम एक फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड ए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. अब जो फंक्शन है f of x successive differential coefficient of f of x are denoted by f dash of x, f double dash of x, f triple dash of x, f 4x dash 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 so on to f raised to power n into x. भी raised to power नहीं है, f n x का मतलब क्या है कि हमने जो फंक्शन f of x है वो n टाइम्स डिफरेंशिएट करा है. ये f डैश ऑफ x हमने एक टाइम डिफरेंशिएट करा है, f डबल डैश ऑफ x 2 बार डिफरेंशिएट करा है. सिमिलरली f n x हमने n टाइम्स डिफरेंशिएट करा है. अब f n ऑफ x को ही हम d n x डिवाइडेड बाय d x रेज़ पावर n लिखते हैं और इस सिंबल का मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमने n टाइम्स सक्सेशन में डिफरेंशिएट करा है. तो आगे देखते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है. फाइंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ log रूट 3x प्लस 4.
तो इसका सोल्यूशन है लेट y इक्वल्स टू log रूट 3x प्लस 4। तो हमने y को लेट कर लिया, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/2। तो ये हो गया log ऑफ 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/2। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास log में log x रेज़ टू पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू लॉग ऑफ x। तो हमने वही करा है, इसकी जो पावर है वो उसको आगे ले गए, 1/2 ऑफ इंटू लॉग ऑफ 3x प्लस 4। तो हमारे पास फंक्शन y क्या बन गया है, y इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 3x प्लस 4। इसको मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ले आए हैं, y इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 3x प्लस 4। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, हमने सिंपली इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू 1 बाय 3x प्लस 4 इंटू 3। अब ये कैसे आया, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। तो लॉग की डिफरेंशिएट जब हमने करा तो यहाँ पे आ गया 1/3x प्लस 4, बट यहाँ पे 3x भी है तो 3x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इज 1/2 इंटू 1/3x प्लस 4 इंटू 3, दैट इज 3/2 इंटू 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर -1। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव 3/2 इंटू -1, 3/2 ये -1 ये वाला, उसके बाद 3x प्लस 4 -1 बिकम्स -2 और फिर एंड में 3x की डिफरेंशिएशन इज 3। तो ये हमारे पास बन गया -9/2 इंटू 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर -2। नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव y3 is equals to -9/2, -2 आगे आ गया इंटू -2 इंटू 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर -2, -1 becomes -3 और 3x की डिफरेंशिएशन इज 3। So this becomes 27 into 3x plus 4 raised to power -3। अब इन्होंने फोर्थ डेरिवेटिव पूछा है तो हम फोर्थ डेरिवेटिव तक ही जाएंगे, which is y4 is equals to 27 into -3 into 3x plus 4 raised to power -3, -1 becomes -4 and 3x की differentiation is 3. So this becomes -243 into 3x plus 4 raised to power -4 and this is your answer. अब हम सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ लिखने वाला काम है, ये यूज तो होता नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे अगर हमने किसी वैल्यू, किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले, अगर हमें कॉस्ट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कितना मैक्सिमम मटेरियल लगेगा या हमने फाइंड आउट करने की कितना मिनिमम मटेरियल लगेगा, तो वो सब हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी डेरिवेटिव्स बहुत यूज होते हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग और साइंस की प्रॉब्लम्स में स्पेशली जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ही सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। तो फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूलेज लाइक वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, उसके हायर फॉर्मूलेज, हीट इक्वेशन हो गई, वेव इक्वेशंस हो गई, ये सब जो है फिजिक्स का भी पार्ट है और इस फिजिक्स के पार्ट को हम मैथ्स के एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। सो डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प करता है। So now back to the examples. Next example है हमारे पास, if y equals to x raised to power if y equals to exponential of x into sine of x, then prove that d2y by dx2 is equals to 2 into exponential of x into cos of x. तो इसका हम सिंपल कैसे प्रूव करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखा देंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 2e raised to power x into cos of x आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, y equals to e raised to power x into sin of x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, e raised to power x into d by dx of sin of x, thus sin of x into d
by dx of e raised power x। अब हमने यहाँ पे चेन रूल यूज करा है, चेन रूल याद है ना, तो वही यूज करा है। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारे फॉर्मूलेज ब्रैकेट में लिख दे एक सम के, क्योंकि उसमें फिर नंबर भी अच्छे मिलते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जो जो फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में यूज होगा, या तो आप पहले लिख सकते हैं, अगर जैसे पहले नहीं पता चलता तो स्टेप के साथ में लिख सकते हैं आप। जहाँ पे भी जैसे ये साइन ऑफ एक्स का यूज हो रहा है, तो मैं इस स्टेप की साइड पे डी ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है कॉस ऑफ एक्स ऐसे लिख दूंगी। So these are the formulas of differentiation that are to be used in this question. So d of cos of x is equals to minus sin of x, d of sin of x is equals to cos of x, and d of exponential of x is equals to e raised power x. तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया e raised power x into cos of x plus ex into sin of x। यहाँ पे ex कॉमन निकल गया तो हमारे पास आ गया ex into cos of x plus sin of x। ठीक है, अब हमें सेकंड डेरिवेटिव भी पूछा है क्वेश्चन में, तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और थर्ड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड डेरिवेटिव पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो d2y by dx2 क्या आ गया हमारे पास, ex into d by dx of cos of x plus sin of x plus cos of x plus sin of x into d of dx by e raised power x। तो यहाँ पे भी हमने चेन रूल यूज करा है। चेन रूल यूज करने के बाद हम जब इनको डिराइव करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, e raised power x into cos of x की माइनस sin x की cos x प्लस ये एज इट इज लिख देंगे cos of x plus sin of x into e raised power x। तो हमने फिर से ex को कॉमन निकाल लिया दोनों साइड से, तो हमारे पास आ गया ex into माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। sin x कट हो जाएंगे, यहाँ पे sin x कट हो गए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू 2 cos ऑफ x। तो हमने यही प्रूव करना था। d2 dy बाई dx2 क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू e रेज पावर x इंटू cos ऑफ x। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू eax इंटू cos x ऑफ bx। अब ये cos x क्या है, ये cos x जो है यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन नहीं है। ये h है ना यहाँ पे, ये इसकी वजह से हाइपरबोलिक फंक्शन है, और हमें यही ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम इसमें सर्कुलर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज डाल देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दैट इज व्हाई जो हाइपरबोलिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन है वो भी अलग से याद करनी जरूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू eax cos of bx। Now we have to prove that d2y by dx2 minus 2a into dy by dx plus a square minus b square into y is equals to 0। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है और यहाँ पे सिंपली y है। तो हम y ऑफ x को सिंपली 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसकी LHS साइड पे पुट कर देंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, y की वैल्यू ये है, इसको फर्स्ट टाइम डिराइव करेंगे तो ये भी हमारा वैसे चेन रूल से सॉल्व होगा। तो dy by dx is equals to eax differentiation of cos of bx plus cos of bx into differentiation of eax। तो यहाँ पे cos of bx की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, पहले तो cos की आएगी sin of bx और फिर bx की डिफरेंशिएशन आएगी b। सिमिलरली cos of bx यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ eax क्या क्या आ जाएगा eax। बट यहाँ पे जो ax है, यहाँ पे x अकेला नहीं है, यहाँ पे इसका वेरिएबल a भी है इसके साथ, इस वजह से ax की जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो हो जाएगी a। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, हमने e ऑफ ax दोनों में से कॉमन निकाल लिया, e ऑफ ax इंटू b इंटू साइन ऑफ bx प्लस a इंटू कॉस ऑफ bx। सिमिलरली हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आएगा e रेज़ पावर ax इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b साइन ऑफ bx प्लस a कॉस ऑफ bx प्लस हमने इसकी इस पोर्शन की डिफरेंशिएशन कर दी है। अब सेकंड टाइम पे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो e ax प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b sin bx प्लस a cos bx प्लस ये एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e ax। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा e ax b इंटू b cos ऑफ bx। b इंटू b क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे b है, तो दैट बिकम्स b स्क्वायर cos ऑफ bx प्लस a इंटू b साइन ऑफ bx। तो हमारे पास आ गया प्लस ए बी साइन ऑफ bx। सिमिलरली हमारे पास ये एज इट इज आ गया और डिफरेंशिएशन ऑफ e a x का क्या आ जाएगा, a इंटू e a x। तो आगे हमारे पास है d2y by dx2 is equals to e ax into a square cos of bx plus b square cos of bx plus 2ab sin of bx। ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई है, सेकंड डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई है, तो हम इसको LHS में पुट कर देंगे। LHS में पुट करेंगे d2y by dx2 minus 2a dy by dx plus a square minus b square into y। जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो एंड में हमारे पास यहाँ पे सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर दी है। a स्क्वायर cos ऑफ bx और यहाँ पे a स्क्वायर cos ऑफ bx बिकम्स 2a स्क्वायर cos ऑफ bx और ये माइनस 2a स्क्वायर cos ऑफ bx के साथ कट हो जाएंगे, b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कट हो गए, 2ab और 2ab कट हो गए। दैट मीन्स e रेज़ बाय ax into 0 is equals to 0। यही हमारा RHS था और हमने यही प्रूव करना था। Hence the question has been proved. Next question is find the value of a, b, c so that f of x is equals to x cube plus 3x plus 5 when x is less than equals to 1 and ax square plus bx plus c when x is greater than 1। तो हमारे पास ये given है is twice differentiable at x equals to 1। तो हमारे पास एक थ्योरम होती थी कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दैट मीन्स कि उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन में हम ये इस ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी थ्योरम के थ्रू सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो f ऑफ x की वैल्यू जब हमारे पास x लेस देन इक्वल्स टू 1 है वो ये है और जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये है। तो हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये थोड़ा बहुत ट्रिकी है और ये पेपर में आ सकता है। तो f ऑफ x हमने सिंपली ऐसे लिख लिया। f डैश ऑफ x कैसे आएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3 when x is less than equals to 1 and 2ax plus b when x is greater than 1। और डबल डेरिवेटिव यहाँ पे लिखो ना, ट्वाइस डेरिवेटिव, दैट इज व्हाई हम इसका डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो f डबल डैश x equals to 6x 3 into 2x that becomes 6x when x is less than equals to 1 and 2a plus 0 when x is greater than 1 that is 2a। So now given f double x dash x exist at x equals to 1। तो अगर डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर x इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मींस कि f डैश ऑफ x पे एग्जिस्ट करेगा और दैट आल्सो मींस कि f ऑफ x जो है वो कंटीन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1। तो हम इसको आगे ये 3 पॉइंटर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। इन पॉइंटर्स के बिना अगर आपको ये नहीं पता है तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहले कि f डबल डैश ऑफ 1 एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा। तो f डबल डैश 1 माइनस इज इक्वल टू f डबल डैश 1 प्लस। यहाँ पे जो 1 माइनस है ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इसका मतलब ये है कि हम जब फंक्शन में 1 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हम इस वैल्यू में पुट करेंगे 6x में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है फंक्शन 6x है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। और सिमिलरली जो 1 पॉजिटिव हमने लिखा हुआ है उसमें हम 2a की वैल्यू पुट करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ 1 माइनस इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ 1 प्लस 6 into 1 इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल्स टू 3 आ गया, हमारे पास a की वैल्यू आ गई। सिमिलरली f डैश ऑफ 1 एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है एट x इक्वल्स टू 1। तो हम इसमें पुट कर देंगे f डबल डैश ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 3 फॉर x इज लेस देन 1। तो यहाँ पे आ गया 3 into 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 into a
x प्लस b, तो a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई पहले, 2 into 3 into 1 प्लस b एज इट इज, तो हमारे पास आ गया 6 इक्वल्स टू 6 प्लस b, यहाँ से b की वैल्यू आ गई b इक्वल्स टू 0. ऑल्सो f of x is continuous है x इक्वल्स टू 1. ये कैसे आया? अगर हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन हमें गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है एट सम पॉइंट x नॉट, सपोज कर लो, तो ये थ्योरम में कहती है कि f मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी होगी. तो कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है? if f of x is continuous at x equals to 1, then limit x tends to 1 minus f of x is equals to limit x tends to 1 positive f of x. तो यहाँ पे सिमिलरली हम LHS और RHS में वैल्यूज पुट करके 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को की वैल्यूज पुट करके 9 इक्वल्स टू 3 प्लस सी आ गया. यहाँ से सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6. तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 0 एंड सी की वैल्यू आ गई 6. तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, if f is defined by f of x is equals to 0 if x is less than equals to 0 and x cube if x is greater than 0. Prove that f dash and f double dash both exist for each x whereas f triple dash x मतलब third derivative exists at each point x except for 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट whereas f triple dash x exists at each x except 0. इस स्टेटमेंट की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. तो सबसे पहले हम सिंपली डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे फॉर x लेस देन 0 और फॉर x ग्रेटर देन 0. तो x लेस देन 0 में हम सारी ये वाली वैल्यू यूज करेंगे जो फंक्शन की है, ग्रेटर देन 0 में x क्यूब यूज करेंगे. तो f ऑफ x 0 है तो इसके सारे डेरिवेटिव्स भी 0 होंगे और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x x क्यूब है तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया 3 into 2x इक्वल्स टू 6x और थर्ड डेरिवेटिव हो गया 6 into 1 is 6. तो सबसे पहले हमने सिंपली इनके डेरिवेटिव निकाल लिए. तो अब आगे देखते हैं. नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0. हमें पता है ना, हमने अभी भी देखा कि जब हमारे पास f ऑफ x 0 है तो x क्या है, जब हमारे पास x 0 है, जब हमारे पास x 0 है तो हमारे पास f ऑफ x भी 0 है. तो हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं फर्स्ट टाइम के लिए. f डैश ऑफ 0 नेगेटिव क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज इनटू माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0. तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की 0 पे वैल्यू क्या है 0, f ऑफ 0 0 ही है तो 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0. f डैश ऑफ 0 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0. ये लिमिट के फॉर्मूले है. यहाँ पे जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x क्यूब डिवाइडेड बाय x. तो यहाँ पे हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं सिंपली. मैंने आगे वाले क्वेश्चन में आगे वाले स्टेप में x स्क्वायर लिख के सॉल्व करा हुआ है, अभी फिलहाल हम ऐसे देख लेते हैं. तो यहाँ पे इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h डिवाइड का होल क्यूब डिवाइड बाय 0 प्लस h. तो यहाँ पे आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, जब h 0 को टेंड करे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0. तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आया है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अगर ये इक्वल हो गए तो वी कैन से दैट f डैश ऑफ 0 exists एंड इज इक्वल टू 0. तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया कि f डैश ऑफ x एग्जिस्ट करता है एट ईच x. अब हमारे पास हम सिमिलरली सेम तरीके से हम सेकेंड डेरिवेटिव भी प्रूव करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो f डबल डैश ऑफ 0 नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया हमारे पास, ये भी 0 आ गया सेम प्रोसेस से. तो f डबल डैश ऑफ 0 पॉजिटिव, ये भी हमारे पास 0 आ गया सेम प्रोसेस से. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f डैश ऑफ x माइनस f डैश ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0 हमारे पास आ गया है
3x square by x, तो x कट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3 of x is equals to limit x tends to 0 3 into 0 plus h. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो 0 है वो जो x है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो हमने वहीं पे लिखा है कि 0 में थोड़ी सी पॉजिटिव चीज ऐड हो रही है, बट हमारे पास जो लिमिट h है वो 0 का टेंड कर रही है, तो फिर 3 into h equals to 3 into 0 equals to 0. अब सेम केस में हमारे पास फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव भी LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि f डबल डैश ऑफ 0 एग्जिस्ट एट इज इक्वल टू 0. तो हम इसको भी सेम तरीके से लिखेंगे कि f जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है कैसे. सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है जब x 0 से छोटा है, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है जब x इक्वल्स टू 0 है, और 6x है जब x ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो हमने सिर्फ ये प्रूव करना था कि जो x 0 है वो x इक्वल्स टू 0 है, उस पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. नाउ द थर्ड डेरिवेटिव ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, इसी की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हम थर्ड डेरिवेटिव ध्यान से देखेंगे. तो f ट्रिपल डैश ऑफ 0 नेगेटिव, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f डबल डैश ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0. तो ये सारे 0 पे तो 0 ही था, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है 0. तो हम इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकालेंगे f ट्रिपल डैश ऑफ 0 पॉजिटिव, तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f डबल डैश ऑफ x माइनस f डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0. तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 6 ऑफ x, हमने पीछे निकाला है ना डबल डेरिवेटिव, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया 6 ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 6 ऑफ x डिवाइडेड बाय x. यहाँ पे x कट गए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x 6. जब हमारे पास यहाँ पे x ही नहीं है तो हम लिमिट किसके टेंड करें, तो इस क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन सिंपली आ गया 6. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ गया 0, बट राइट हैंड डेरिवेटिव आया है 6, तो हमारे पास क्या आ गया f ट्रिपल डैश ऑफ 0 नेगेटिव f ट्रिपल डैश ऑफ 0 पॉजिटिव पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड डेरिवेटिव है वो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहा है ना f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6, बट ये कब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जब x की वैल्यू है 0. therefore we can write that f triple dash of x exists at each x except for 0. तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंक्लूड हो रहा है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंक्लूड हो रही है. To continue learning from me, please join my online classes on Zoom, which are going to be started from 4th of August. And to join, call this number. Thank you so much and have a nice day.